Welcome students to our video lecture series of irrigation engineering. Today we are starting a new chapter, regulation and cross drainage work. So let's start with the syllabus content. Here you can see the syllabus. A cross drainage work. उसके अंदर हम लोग types sections of suitable type of cross drainage work, aqueduct and siphons. Then aqueduct में determination of maximum flood discharge and waterway for drain, flowing of canal, uplift pressure on undesired of barrel roof and at the floor of the culvert, design of bank connection. ठीक है, ये पूरा कंटेंट है हम लोग सिलेबस के अंदर, ये इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करना है. ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क आ गया इसके अंदर, सॉरी क्रॉस ड्रेनेज वर्क आ गया. उसके बाद रेगुलेशन के अंदर कैनाल फॉल, साइफोन्स, ये सब भी आने वाला है आगे. ठीक है, पहले क्रॉस ड्रेनेज से हम स्टार्ट करते हैं. So what do you mean by the cross drainage work? So in an irrigation project, when the network of main canals, branch canals, distributaries, etc. are provided, then this canal may have to cross the natural drainage like rivers, streams, nalas, etc. At different point within the command area of the project, the cross of the canal with such obstacle cannot be avoided. So suitable structure must be constructed at the crossing point for the easy flow of water of each canal and drainage in the respective directions. These structures are known as the cross drainage works. So here you can see all the data और all the wording, but नॉर्मल भाषा में बताऊँ मैं आपको, तो जब हम लोग कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी पढ़े, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग कैनाल बनाते थे, एल्यूअल, नॉन एल्यूअल, लाइनिंग, अनलाइन कैनाल, ये सब आपने पढ़ा था आगे के चैप्टर में. तो जो हम कैनाल बनाते हैं तो काफ़ी बार क्या है कि हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क के रूट होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं नेचुरल स्ट्रीम्स भी आ जाती है. रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गई, छोटे मोटे नाले आ गए. ठीक है, ये सब नेचुरल है, तो उसको तो हम हटा नहीं सकते, उसको तो अपनी जगह पे ही रहने वाले. तो हमें हमारी कैनाल उसको ओवरकम कर जाए, ठीक है, उसमें से पास हो जाए विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल कैनाल और नेचुरल स्ट्रीम, सॉरी. तो ऐसे स्ट्रक्चर तब हमें बनाना पड़ेगा नेचुरल जो ड्रेनेज है उसके ऊपर, तो उसको हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं. क्लियर? देन इन इरिगेशन कैनाल, while carrying water from the headworks to crop field, have to cross few natural drainage streams, nala, etc. To cross those drainages safely by the canals, so suitable structure are required to construct. Obviously, मैंने आपको अभी बताया, works required to construct to cross the drainage are called cross drainage works. मतलब जो कैनाल के ऊपर हम लोग जो बनाने वाले हैं, ठीक, नेचुरल सिस्टम के ऊपर जो बनाने वाले कैनाल को पास होने के लिए, उसको हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलेंगे. एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ कैनाल एंड द ड्रेनेज बेड लेवल में नॉट बी द सेम. डिपेंडिंग ऑन देयर बेड लेवल, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड अकॉर्डिंगली दे आर डिजाइन बाय द डिफरेंट नेम्स. मतलब कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो नेचुरल स्ट्रीम है उसका लेवल और हमारी कैनल का लेवल काफ़ी बार क्या होगा कि नेचुरल स्ट्रीम आपकी थोड़ी ऊपर होगी और आपकी कैनाल नीचे होगी, राइट. उसका जो फुल सप्लाई लेवल है और अपनी जो नेचुरल स्ट्रीम का फुल सप्लाई लेवल है वो एक दूसरे से ऊपर नीचे हो रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको अलग नाम से बुलाते हैं. ठीक है, टोटल को तो हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क ही कहते हैं, पर काफ़ी बार जो ऊपर से जाते हैं उसके लिए अलग है और नेचुरल सिस्टम के नीचे से जाता है उसके लिए अलग नेम हमने प्रोवाइड किया हुआ है. ये कहना चाहते हैं यहाँ पे. So what is the necessity of cross drainage work? The watershed canal do not cross natural drainages, but in actual orientation of the canal network, this ideal condition may not be available and the obstacles like natural drainage may be present across the canal. So the cross drainage work must be provided for running the irrigation system. At the crossing point, the water of the canal and the drainage get intermixed. So for the smoothing running of the canal with its design discharge, the cross drainage work are required. हर एक लाइन के अंदर एक ही चीज़ ये लोग बताना चाहते हैं कि जो भी हम नेचुरल स्ट्रीम हमारे ऑब्स्टिकल बनती है कैनाल सिस्टम जो हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर, तो हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलेंगे. ठीक है. देन the site condition of the crossing point
may be such that without any suitable structure, the water of the canal and drainage cannot be diverted to their natural direction. So the cross drainage work must be provided maintain the natural direction of flow. मतलब और कहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि जब साइड की कंडीशन होती है, ठीक है, जो क्रॉसिंग पॉइंट होते हैं दोनों का, नेचुरल स्ट्रीम का और अपनी कैनाल का, अब अगर ये दोनों अंदर ओवर मिक्स हो रहे हैं तो काफी बार क्या होता है, जो कैनाल का जो फ्लो होता है पानी का वो, और जो रिवर का पानी का फ्लो होता है वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, एडिज वेडिज क्रिएट होंगी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब जो हमें एक्चुअल डायरेक्शन में जो पानी जाने देना था उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा। इसलिए उसके लिए अगर वो स्मूथली पानी की जो प्रोसेस है जाने की वो स्मूथली मेंटेन रखनी हो तो उसके लिए हमें ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ क्रॉस ड्रेनेज वर्क की कि किस तरह से दिखता है ये देखो आप, ये आपकी कैनाल जा रही है और यहाँ पे कहीं पे रिवर होगी, ठीक है। ये दो माउंटेन्स के बीच में आपको दिख रहा है कंटूर जैसा, रिज लाइन दिख रही होगी यहाँ पे कहीं पे। तो ये जो नेचुरल रिवर सिस्टम के लिए उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और नीचे से आपकी कैनाल जा रही है, क्लियर। दूसरा सिस्टम ये आपकी पूरी नेचुरल रिवर है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है वो, और ऊपर से कैनाल जा रही है ये वाली, ठीक है, ब्रिज जैसा बना है कैनाल को जाने के लिए। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। नाउ टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज इरिगेशन कैनाल पासिस ओवर द ड्रेनेज, मतलब नेचुरल जो ड्रेनेज है उसके ऊपर से अपनी इरिगेशन कैनाल जा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वाडक्ट और साइफोन एक्वाडक्ट। ओके, दूसरी चीज होती है टाइप 2, उसके अंदर ड्रेनेज पासिस ओवर द इरिगेशन कैनाल, मतलब जो हमारी नेचुरल सिस्टम है वो इरिगेशन कैनाल के ऊपर से जा रही है, मतलब कि जो नेचुरल सिस्टम है उसके नीचे से हमको कैनाल ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्लियर। तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर पैसेज या साइफोन सुपर पैसेज। ओके, और थर्ड टाइप होती है ड्रेनेज एंड कैनाल इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑफ द सेम लेवल, तो उसको हम लोग लेवल क्रॉसिंग और इनलेट और आउटलेट की तरह इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है ऊपर से जाने वाला, दूसरी होती है नीचे से जाती है। आप लोग उसको एक टर्म को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। मैं नेचुरल स्ट्रीम को कांस्टेंट कर देता हूँ। नेचुरल ड्रेनेज जो है रिवर, स्ट्रीम्स, नाला, ये सब को कांस्टेंट रखते हैं, उसको ध्यान में रख के, मतलब रिवर के नीचे से जा रही है कैनाल तो मैं उसको सुपर पैसेज और साइफोन सुपर पैसेज कहूँगा। रिवर नेचुरल रिवर के ऊपर से जा रही है तो मैं उसको एक्वाडक्ट और साइफोन एक्वाडक्ट कहूँगा। और रिवर और कैनाल दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक ही लेवल पे तो मैं उसको लेवल क्रॉसिंग और इनलेट और आउटलेट क्रॉसिंग बोलूँगा, ठीक है। नाउ सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, किस टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमें सिलेक्ट करना है वो रिलेटिव पॉइंट्स पे ऊपर डिपेंड करता है, नीचे आप देख सकते हो। और रिलेटिव बेड लेवल्स, सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल फाउंडेशन, थर्ड है इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, थर्ड डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज, एंड फिफ्थ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। 6 आप लोग फ्लूइड सप्लाई लेवल को भी लिख सकते हो, मतलब पानी का जो फुल सप्लाई लेवल होता है उसको भी ध्यान में रख के हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्रिएट कर सकते हो। 6 पॉइंट आप फुल सप्लाई लेवल को ऐड कर देना। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क के अंदर फर्स्ट वन, इरिगेशन कैनाल पासिस ओवर द ड्रेनेज, right? So this condition involves the construction of following aqueduct and siphon aqueduct. So first one, aqueduct, the hydraulic structure in which the irrigation canal is taken over the drainage such as river, stream, etc. is known as the aqueduct, right? जो नेचुरल स्ट्रीम है, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, उसके ऊपर से जो जाने कैनाल जा रही है वैसे स्ट्रक्चर को मैं कहते हैं एक्वाडक्ट स्ट्रक्चर, क्लियर। This structure is suitable when bed level of canal is above the highest floor level of the drainage, मतलब जो कैनाल का बेड लेवल है नीचे वाला, ठीक है, जो बेड हम लोग बी से डिनोट करते थे उसको, तो वो लेवल और जो अपने नेचुरल जो ड्रेनेज है, नेचुरल स्ट्रीम है, उसका फ्लड सप्लाई लेवल, ओके, हाईएस्ट फ्लड लेवल जो HFL कहते हैं, मतलब उतना मैक्सिमम पानी उस ड्रेनेज के अंदर हम लोग कैरी कर सकते वो, ठीक है, उसके नीचे हो बेड लेवल के कैनाल के, तो हम लोग एक्वाडक्ट बनाएंगे। इन दिस केस द ड्रेनेज वाटर पासिस क्लियरली बिलो द कैनाल, आप क्लियरली देख सकोगे। आप लोग काफी बार ब्रिज के ऊपर देखते हो तो नीचे से रिवर जा रही है, सेम ऐसे रोड ट्रांसपोर्ट की जगह हम वहां से पानी को मूव करवाएंगे, कैनाल बनाएंगे, क्लियर। इस तरीके से आप फिगर देख सकते हो, ये आपका कैनाल का सिस्टम है, उसका फुल सप्लाई लेवल है,
ये आपका बेस है, कैनाल का बेस लेवल, राइट। ये आपका नेचुरल रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो उसका ये क्या है, हाई फ्लड लेवल। ये दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो, इसका लेवल और बेड लेवल दोनों, बेड लेवल उसके काफी ऊपर दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में उसको एक्वाडक्ट बोलेंगे। क्लियर? You can see this figure also in G2 exam. You have to draw this figure instead of this one. This is for just understanding. So if this question is asked in G2 question examination, and you have to draw this figure particulate. So your canal will be this, and this is your pier to stand the canal on the natural stream, right? Here you can see the fluid supply level is maximum to this limit, and the canal bed is here. So there is a vast difference between them. Clear? This is your aqueduct. This is the original picture of the aqueduct. You can see in this direction it is a natural river, and in this direction you can see the transportation canal, right? दिस इज द एक्वाडक्ट। ये फिगर आपने आगे भी पहले कहीं आगे के चैप्टर में देखी हुई थी कैनाल के अंदर। नाउ साइफोन एक्वाडक्ट इन अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर द कैनाल इज टेकन ओवर द ड्रेनेज, बट द ड्रेनेज वाटर कैन नॉट पास क्लियरली बिलो द कैनाल, राइट। मतलब कि क्या है कि आगे एक्वाडक्ट में क्या होता था कि आपका जो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। सॉरी, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ध्यान में रखो। इंक्लाइन डायरेक्शन में आपकी कैनाल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी नेचुरल स्ट्रीम है। अब वो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, मैंने आगे आपको फिगर में समझाया था। बट ये वाली फिगर में एक्वाडक्ट वाली, ये देखो दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है। ये हाई फुल सप्लाई लेवल है और ये कैनाल का बेड है, ये दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है। बट अब जो साइफोन एक्वाडक्ट है उसके अंदर ये डिस्टेंस नहीं होगा, पानी यहाँ पे होगा पूरा, ठीक है। इसके नीचे से ऐसे मूव होके जाएगा, कैनाल को टच करके मूव होके जाएगा, तो ये आपका सिफोन एक्वाडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो इट इज फ्लो इन द साइफोनिक एक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइफोन एक्वाडक्ट। दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल व्हेन द बेड लेवल ऑफ कैनाल इज बिलो द हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है। जो नेचुरल स्ट्रीम का हाईएस्ट फ्लड लेवल है और उससे थोड़ा ही नीचे होगा आपका जो बेड लेवल है, वो नीचे रहेगा कैनाल का, तब हम ये साइफोन एक्वाडक्ट क्रिएट करेंगे। उसकी फिगर कुछ आपको ऐसी दिखेगी। ये फुल सप्लाई लेवल FSL, ये हाई फ्लड लेवल, और ये कैनाल बेड लेवल, राइट। ये कैनाल बेड लेवल और हाई फ्लड लेवल मर्ज हो रहे हैं, देखो एक दूसरे के अंदर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में मूव होके यहाँ से फ्लो करेगा। क्लियर? उसकी आपको मैं GTU में जो फिगर ड्रॉ करनी है वो दिखा देता हूँ, इस तरह का होगा। क्लियर? यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड होगा, यहाँ पे हम लोग पाइल प्रोवाइड करेंगे। ये आपकी पूरा कैनाल सिस्टम है, ये पाइल होगी, पियर पाइल। क्लियर? और यहाँ पे हाई फ्लो लेवल नीचे से ऐसे होके मूव करेगा। ये उसका हाई फ्लो लेवल यहाँ तक है, पानी यहाँ से नीचे से ऊपर तक जा रहा है, इसलिए इसको साइफोन एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का डिफरेंस है सिर्फ हाई फ्लड लेवल का ही डिफरेंस है। साइफोन एक्वाडक्ट की मैं बात करूँ तो हाई फ्लड लेवल होता है वो इसके नीचे, क्या कहते हैं, ऊपर होता है कैनाल बेड लेवल से। ये कैनाल बेड लेवल है, ये उसके ऊपर हाई फ्लड लेवल है साइफोन एक्वाडक्ट में। जबकि एक्वाडक्ट के अंदर ये जो हाई फ्लड लेवल है आपको HFL दिख रहा है, वो कैनाल बेड से नीचे के टाइप, नीचे है एकदम। अगर आपको GPSC में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, which type of structure is suitable when the high flow level is below the canal bed level, then you have the answer aqueduct. Clear? And if the question is which type of structure is suitable when the high flow level is above the canal bed level, then it is a siphon aqueduct. Clear है? ओके। सो दोनों ही फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, एक्वाडक्ट और साइफोन एक्वाडक्ट की। GTU के अंदर ये क्वेश्चन पूछते भी है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। क्लियर? तो साइफोन एक्वाडक्ट है, एक्वाडक्ट है, देन सुपर पैसेज, साइफोन सुपर पैसेज, इनलेट आउटलेट। क्लियर? तो ये सभी के फिगर्स है जो आपको ध्यान में रखनी होगी आगे जाके।
अभी आज के लेक्चर में मैं बस यही दो रखता हूँ, एक्वाडक्ट और साइफोन एक्वाडक्ट। तो क्या है कि आगे क्रॉस ड्रेनेज और उसमें आपको डिफिकल्टीज ना हो, तो ये लेक्चर आप एक बार फिर से देख लेना। क्लियर? मेन तो आपको जीटीयू में पूछेंगे यही क्वेश्चन, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं साइफोन एक्वाडक्ट और एक्वाडक्ट का, राइट? या फिर एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज का भी डिफरेंस आता है काफी बार, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, टोटल टाइप्स, राइट, कि कैनाल नेचुरल सिस्टम से ऊपर से जब पास हो रही है तो एक्वाडक्ट और साइफोन एक्वाडक्ट आएगी। क्लियर? ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी कि नेचुरल स्ट्रीम के नीचे से अगर मेरी कैनाल जा रही है तो मैं उसको सुपर पैसेज और पैसेज बोलूंगा। उसके अंदर भी क्राइटेरिया है एक्वाडक्ट और सिफोन एक्वाडक्ट का, कि हाई फ्लड लेवल वाला, ठीक है, HFL वाला क्राइटेरिया इसमें आएगा। टाइप 1-2 का अलग फंडा होगा और एक्वाडक्ट और साइफोन एक्वाडक्ट का अलग फंडा होगा। इसके अंदर क्या आपको हाई फ्लड लेवल जो है वो कैनाल बेड से नीचे है काफी, ठीक है, एक्वाडक्ट के अंदर। और साइफोन एक्वाडक्ट में क्या है कि हाई फ्लड लेवल जो नेचुरल स्ट्रीम का है वो जो कैनाल बेड है उसके ऊपर से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो साइफोनिक एक्शन से पानी मूव हो रहा है कैनाल के नीचे से। क्लियर? तो ये डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं सुपर पैसेज और साइफोन पैसेज के बारे में। ओके, सो आज बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द सुपर पैसेज एंड अनदर टर्म्स। ओके।